Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all my dear friends and English literature aspirants. This is your host Samia Omar and you're watching MA English Part 1 and 2 notes. Today I'm going to start classical poetry which is included in the syllabus of MA English Part 1. Many students have been asking for it as it is not easy to understand, so I'm uploading the paraphrasing of each line of the prologue to the Canterbury Tales. Before watching this video, please subscribe my channel and also press the bell icon for notifications. A prologue to the Canterbury Tales, written by Geoffrey Chaucer. I'm going to provide you the complete text paraphrasing as you must be able to understand the lines of the poem so that you can able to solve the reference to the context in the paper. And hopefully you will understand the whole poem and the concept behind that poem. Firstly, I'm going to give a short introduction of the poet to the prologue to the Canterbury Tales. Geoffrey Chaucer. He was born in London in the early 1340s. He came from a merchant family, but due to his father's wealth, he became a page in the household of Prince Lionel. He served in the 100 Years' War both as a soldier and a diplomat. He was sent several times on important diplomatic missions to France and Italy. In Italy, he might have met Boccaccio, whose writing influenced his work, and Petrarch. He held many important positions, such as government official, as a controller of the customs, justice of the peace, clerk of the works, etc., which meant that he could learn a lot about how things worked in the country at that time. He died on October 25th, 1400 and was buried at Westminster Abbey. Geoffrey Chaucer is also known as the father of English poetry and he belonged to the 14th century. जो लाइन्स हम आज कवर करने जा रहे हैं आप नोट कर लीजिएगा. A prologue to the Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer, lines 1 to 269. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में I'll try कि मैं 300 lines cover करूँ. So let's start. When that April with a sure suit, जब अप्रैल के महीने में मीठी खुशबू के साथ बारिश होती है, the root of March hath pierced to the root, और मार्च में जो खुश साली होती है वो pierce हो जाती है रूट तक, and bath every vein in such liquor, और प्लांट की हर वेन जो है इस बारिश में नहाती है, of which whereto engendered is the flower, जिसकी ताकत से एक फूल जो है वो उगता है. When Zephyrus eke with a sweet breath, जब वेस्ट विंड चलती है अपनी मीठी खुशबू के साथ, inspired hath in every hold and heath, हर जंगल में और हर खेत में एक नई जिंदगी जन्म लेती है. The tender crops and the young sun, नए पत्ते उगाते हैं और जो नया सन उभरता है. hath in the ram his half course run, यानी जो नया सूरज है उसने अभी आधा चक्कर कंप्लीट किया है, यानी अभी सूरज आधा निकला है. एंड स्मॉल फॉलस मेकन मेलोडी, और जब छोटे परिंदे गीत गाते हैं. दैट स्लीपन ऑल द नाइट विद ओपन ई, जो पूरी रात सोते हैं खुली आँखों से. फाउल्स होते हैं जो बिल्कुल स्मॉल बर्ड्स होते हैं. सो प्रीकथ दैम इन नेचर हर कॉरेजेस, और नेचर जो है वो उनके दिलों में अपनी जगह बना लेती है. Then longing folk to go on pilgrimages, और लोगों के दिलों में ये ख्वाहिश उभरती है कि वो pilgrimage पे जाएं. And palmers for to sicken staunch strands, प्रोफेशनल पिलग्रिम्स जो हैं उनके दिल में ख्वाहिश होती है कि वो अनएक्सप्लोर्ड शोर्स को विज़िट करें. टू फन हाव्स कोथ द सॉन्ड्री लॉन्ड्स, और डिस्टेंट श्राइन्स को भी विज़िट करें जो कि मशहूर हैं मुख्तलिफ लैंड्स में. एंड स्पेशली फ्राम एवरी शायर्स एंड, ख़ास तौर पे हर गांव के या हर काउंटी के एंड से लोग आते हैं. ऑफ इंग्लैंड टू कैंटरबरी दे वेंट, इंग्लैंड से कैंटरबरी तक वो ट्रैवल करते हैं. द होली ब्लिसफुल martyr, for to seek the holy blessed martyr, यानी वो मुक़द्दस ब्लेस्ड
शहीद को विज़िट करना चाहते हैं. That Ham hath holpen when that they were sick, who helped them when they were sick. जिसने उनकी तब मदद की थी जब वो बीमार थे. Befell that in that season on a day, it happened that in that season on one day, एक दिन इस तरह हुआ, in Southwark at the Tabard as I lay, Southwark में टेबर्ड इन में वो लेटा हुआ था, ready to wenden on my pilgrimage, मैं तैयार था कि मैं अपने सफ़र पे रवाना हूँ, to Canterbury with full devout courage, कि मैं कैंटरबरी जाऊँ full devotion के साथ और spirit के साथ. At night was come into that hostelry, रात को सब वो उस हॉस्टलरी में इकट्ठे हो गए. Well 9 and 20 in a campaign, वो 29 थे तादाद में, of sundry folk by adventure by fall in fellowship. हर तरह के लोग वहाँ मौजूद थे. बाय चांस वो इकट्ठे हो गए थे फेलोशिप में, यानी हर नस्ल से और हर प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते थे. एंड पिलग्रम्स वर दे ऑल, और वो तमाम पिलग्रम्स थे दैट वर्ड कैंटरबरी वोल्डन राइड, जिनकी इंटेंशन थी कि वो कैंटरबरी तक सफ़र करें. द चेम्बर्स एंड द स्टेबल्स वर वाइड, उनके जो बेडरूम्स थे और स्टेबल्स थे वो बहुत स्पेशियस थे. एंड वेल वी वर इन ईस्ट एट बेस्ट, उनको बहुत बेहतर तरीके से अकोमोडेट किया गया था. Shortly then the sun was to rest, और कुछ देर बाद सनसेट हो गया. So had I spoken with Ham average on, Ham यहाँ पे them है एक्चुअली. वो कहता है कि मैंने सबसे बात की यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, that I was her of her fellowship anon, कि मेरी उनके साथ fellowship है straight away. एनन स्ट्रेट अवे, और हर जो है वो देर के लिए इस्तेमाल होता है. एंड मेड फॉरवर्ड अर्ली फॉर टू राइज, मैंने उन सबसे एग्रीमेंट लिया कि हम सुबह सवेरे उठेंगे. टू टेक आर वे देयर एज आई यो डिवाइस, कि हमने सुबह अपना रास्ता लेना है टूवर्ड्स कैंटरबरी टेल्स, इसलिए मैं ये मशवरा दे रहा हूँ कि सुबह जल्दी उठना है. एंड बट नन दी लेस वेल आई हैव टाइम एंड स्पेस, और हमारे पास वक्त भी है और अपॉर्चुनिटी भी. और दैट आई फर्दर इन दिस टेल पेस, कि मैं इससे पहले कि प्रोसीड करूँ फर्दर इस टेल में, मी थिंक इट अकॉर्डिंग टू रीज़न, मुझे ये अकॉर्डिंग टू रीज़न लगता है, टू टेल यू ऑल द सर्कमस्टांसेस, कि मैं वो तमाम हालात आपसे शेयर करूँ. यहाँ पे सर्कमस्टांस का जो है वो कंडीशन का वर्ड यूज़ किया गया है. कंडीशन की ऐसी स्पेलिंग होती थी ओल्ड इंग्लिश में, ये आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत फ़र्क है ओल्ड इंग्लिश में और न्यू इंग्लिश में. ईच ऑफ हेम सो एज इट सीम्ड मी, उनमें से हर एक जो कि मुझे नज़र आ रहा था, एंड विच दे वर एंड ऑफ वट डिग्री, वो क्या थे और किस रैंक से बिलोंग करते थे. एंड ईक इन वट अरे दैट वर इन, और हर कोई जो था उसकी क्या क्लोथिंग थी जो उसने पहनी हुई थी. एंड एट अ नाइट दैन वुल आई फर्स्ट बिगेन, मैं सबसे पहले एक नाइट से शुरू करूँगा. अ नाइट देर वॉज एंड दैट अ वर्दी मैन, एक वहाँ पे नाइट था जो कि सोल्जर था और वो एक वर्दी इंसान था, यानी काबिल एहतराम था. अ नाइट देर वॉज एंड दैट वन वॉज अ वर्दी मैन, दैट फ्रो द टाइम दैट ही फर्स्ट बिगेन, जिस वक्त से उसने सफ़र शुरू किया था. टू रिडन आउट एंड ही लव्ड चिवलरी, उसको राइडिंग करनी पसंद थी और उसको बहादुरी का शौक़ था, और वो एक कर्टियस और पोलाइट इंसान था. ट्रूथ एंड ऑनर, फ्रीडम एंड कर्टिसी, उसमें ट्रूथ मौजूद था और वो गुड रेपुटेशन थी उसकी. वो ही वॉज जनरस एंड ही वॉज कर्टियस एज वेल. फुल वर्दी वॉज ही इन हिज लॉर्ड्स वॉर, और उसकी बहुत वर्थ थी लॉर्ड्स की वॉर में. एंड देयर टू हैड ही रिडन नो मैन फार, और यही वजह थी कि कोई जो काफ़िला आगे जा रहा था उसमें वो सबसे आगे जा रहा था और उससे आगे कोई भी नहीं जा सकता था. एज वेल इन क्रिस्टनडम एज इन हीदन लैंड्स, हीदन लैंड्स में और क्रिस्टनडम में भी उसकी वर्थ मशहूर थी. एंड एवर ऑनर्ड फॉर हिज वर्दीनेस, और वो हमेशा ऑनर किया गया था अपनी इसी वर्दीनेस की वजह से कि वो काबिल एहतराम था बहुत ज़्यादा. एट एलिसॉन्डर ही वॉज व्हेन इट वाज वन, जब सिकंदर आज़म ने
जंग जीती थी तो वो उसमें शामिल था। फुल ऑफ टाइम ही हैड द बोर्ड बिगॉन, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ था कि वो बैठ गया था अपनी प्लेस ऑफ ऑनर में जहाँ पे उसको इज़्ज़त दी गई थी। अबव ऑल नेशंस इन प्रूस, तमाम नाइट से ऊपर तमाम नेशंस में प्रूशिया एक जगह है वहाँ पे। इन लैटो हैड ही राइज्ड एंड इन रूस, और कैंपेन की थी उसने लथुनिया में भी और रशिया में। नो क्रिश्चियन मैन सो ऑफ्ट ऑफ हिज डिग्री, कोई भी क्रिश्चियन इंसान उसकी रैंक का उसने इतनी कैंपेन्स नहीं की थी जितनी उसने की थी। इन ग्रेनेड एट द सीज ईक हैड ही बी, वो ग्रेनाडा में भी था सीज के मुकाम पे। ऑफ अल्जज़ीर एंड रिटन इन बेलमेर, वो अल्जकारस में और मोरक्को में भी उसने अपना घोड़ा दौड़ाया था। एंड लेयस वॉज ही एंड एट सेटली, और वो याश में भी था और इटालिया में भी। व्हेन दे वर वन एंड एट द ग्रेट सी, इन द ग्रेट सी, यानी मेडिटेरियन सी में भी वो था जबकि वो जीत चुके थे। एट मैनी अ नोबल आर्मी हैड ही बी, और उसने बहुत सारी जंगें जीती थी। एट मोर्टल बटालीज हैड ही बीन 15 उसने मोर्टल जंगें लड़ी थी। एंड फॉटन फॉर अ फेथ एट ट्रेमेसिन, टैमसन में उसने जंग लड़ी थी हमारे फेथ के लिए। इन लेस्टिस थ्राइस एंड ए स्लेन हिज फू, 3 टाइम्स उसने फॉर्मल डुअल्स लड़े थे और हर दफ़ा उसने दुश्मन को हरा दिया था। दिस अलाइक वर्दी नाइट हैड बीन ऑल्सो, ये वही सेम वर्दी नाइट था। सम टाइम विद लॉर्ड ऑफ पैलेटी, लॉर्ड ऑफ बैलेट के साथ एक दफ़ा। अगेन अनदर हीदन टर्की, और एक दफ़ा वो टर्की में एक हीदन के अगेंस्ट था। एंड एवर मोर ही हैड अ सॉवरेन प्रेज, और हमेशा की तरह उसको बहुत तारीफ़ हासिल होती थी और बहुत उसकी आउटस्टैंडिंग रेपुटेशन थी। एंड दो दैट ही वर वर्दी ही वॉज वाइज, और इसके बावजूद कि वो बहुत बहादुर था लेकिन वो बहुत अक्लमंद था। एंड ऑफ स्पोर्ट एज मीक एज इज अ मेड, लेकिन जो उसकी डिपोर्टमेंट थी, उसकी जो फिज़िकल बॉडी थी वो बिल्कुल ऐसे बारीक सी थी जैसे कि वो कोई मेड हो, या मेड से मुराद यहाँ पे फीमेल। ही नेवर येट नो विलन नी सेड, ही नेवर येट सेड एनी रूड वर्ड, किसी को भी कभी भी उसने कोई रूड वर्ड नहीं कहा था। इन ऑल हिज लाइफ अनटू नो मैटर वेट, अपनी तमाम ज़िंदगी में किसी भी तरह के आदमी से उसने कभी रूड अल्फाज में बात नहीं की थी। ही वॉज अ वेरी परफेक्ट जेंटल नाइट, वो ट्रूली परफेक्ट नोबल नाइट था। बट फॉर टू टेल इन यू ऑफिसर रे, अगर मैं उसकी क्लोथिंग की बात करूँ, हिज हॉर्स वर गुड बट ही वॉज नॉट गे, यानी वो गेली ड्रेस नहीं था, वो खुशनुमा तरीके से ड्रेसअप नहीं हुआ था। ऑफ फुस्टियन ही वर्ड अ गेपॉन, और उसने एक ट्यूनिक पहना हुआ था बड़े रफ मटेरियल का। अल्बिस स्मॉटर्ड विद हिज हैबिगियन, वो सारा स्टेन हुआ था रस से अपने कोट की वजह से। फॉर ही वॉज लेट कम फ्रॉम हिज वियाज, वो अभी अभी जंग से वापस आया था। एंड वंट फॉर टू डून हिज पिलग्रिमेज, और फिर वो पिलग्रिमेज पे सफ़र के लिए निकल गया था। यानी इससे ये मुराद है कि वो अभी अभी जंग से आया था तो उसने वही जो जंगी लिबास होता है पहना हुआ था। विद हिम देयर वाज हिज सन अ यंग स्क्वायर, उसका बेटा भी उसके साथ था यंग स्क्वायर। अ लवर एंड लस्टी बैचलर, वो लाइवली बैचलर था। विद लुक्स क्रूल एज दे वर लीड इन प्रेस, उसके लॉक्स ऐसे कर्ल थे जैसे कि किसी ने प्रेस किए हों कर्लर में। ऑफ 20 ईयर ऑफ एज ही वॉज, वो 20 साल का था आई गेस, यहाँ पे वो गेस कर रहा है स्पीकर। ऑफ स्टेचर ही वॉज ऑफ इवन लेंथ, उसका जो स्टेचर था वो मॉडरेट हाइट का था। एंड वंडरली डेलिबर एंड ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ, और वंडरफुली एजाइल था और उसमें बहुत स्ट्रेंथ नज़र आती थी। एंड ही हैड बीन सम टाइम इन चिवाकी, और वो कुछ देर के लिए चिवलरी एक्सपीडिशन पे गया था, यानी वो भी जंग पे गया था। इन फ्लॉन्डर्स, इन आर्टोइस एंड इन पिकर्डी, ये वो तमाम जगह जहाँ वो जंग पे गया था। एंड बॉर्न हिम विल एज ऑफ लिटल स्पेस, और उसने अपने आप को बड़ा अच्छा कंडक्ट किया था थोड़े से वक्त में। इन होप टू स्टॉन्डन इन हिज लेडी ग्रेस, उसको यही था कि वो लेडीज़ के सामने बड़ा अच्छा इंप्रेशन कायम करेगा कि वो जंगों पे होके आया है, उसको सिर्फ लेडीज़ को इम्प्रेस करना था। एम्ब्रूडेड वॉज ही एज इट वर मीड,
उसके कपड़े ऐसे एम्ब्रॉयडर्ड थे जैसे कि वो कोई मीड हो, यानी वो कोई लेडी हो. फुल ऑफ फ्रेश फ्लावर्स वाइट एंड रेड, और उसके तमाम कपड़े जो थे उस पर एम्ब्रॉयडरी हुई भी थी वाइट और रेड फ्लावर्स की. सिंगिंग ही वॉज और फ्लूटिंग ऑल द डे. पूरा दिन वो गाना गाता था या फ्लूट बजाता था. ही वॉज एज फ्रेश एज इज़ द मंथ ऑफ मे के मंथ की तरह वो फ्रेश था. शॉर्ट वॉज हिज गाउन एंड स्लीव्स लॉन्ग एंड वाइड. उसका गाउन शॉर्ट था और उसकी लॉन्ग स्लीव्स थी और वाइड थी वो. वेल कुड ही सिट ऑन हॉर्स एंड फेयर राइड. वो जानता था कि घोड़े पे किस तरह बैठना है और राइड किस तरह करना है. ही कुड सॉन्ग्स मेक एंड वेल एंड डाइट. वो जानता था गाने किस तरह बनाने हैं और उनको कंपोज किस तरह करना है, उनके वर्ड्स को. जस्ट एन ईक डांस वेल पोएट्री एंड राइट. ऑल्सो वो जानता था कि किस तरह से डांस करना है और ड्राइंग कैसे करनी है और राइटिंग करने भी जानता था. So hot he loved that by nighter tale. वो बहुत पैशनेटली लव करता था. He sleep no more than doth a nightingale. वो एक नाइटिंगेल से ज़्यादा नहीं सोता था. Courteous he was, loyally and serviceable. वो courteous था और humble था, and he was also willing to serve and carve before his father at the table. वो जब अपने फादर के साथ बैठता था टेबल पे तो वो ऐसे टेबल पे कार्विंग करता था. ये मैन हैड ही एंड सर्वेंट्स नामो. नाइट जो था उसके पास यो मैन था और इसके अलावा कोई सर्वेंट्स नहीं थे. एट दैट टाइम फॉर हिम लिस्ट राइट सो. और उस वक्त वो उसको प्लीज़ करता था कि उसके साथ ट्रैवल करे. एंड ही वॉज क्लैड इन कोट एंड हुड ऑफ ग्रीन. यो मैन जो था वो ड्रेस था कोट में और उसके हुड की कलर जो थी वो ग्रीन थी. शेफ ऑफ पीकॉक एरोज ब्राइट एंड कीन. उसने पीकॉक एरोज थे उसके पास जो कि ब्राइट और कीन थे. अंडर हिज बेल्ट ही बार फुल थ्रिफ्टली, जो कि उसने बेल्ट के अंदर कैरी किए हुए थे प्रॉपरली. वेल कुड ही ड्रेस हिज टैकल यमनली. वो जानता था किस तरह अपनी इक्विपमेंट की केयर करनी है जिस तरह के एक योमैन को करनी चाहिए. हिज एरोज ड्रूप नॉट विद फैदर्स लो. उसके फैदर्स जो थे उसके एरो के वो नीचे की तरफ नहीं गिरे हुए थे. एंड इन हिज हैंड ही बार अ माइटी बो. उसने अपने हाथ में एक बड़ी बो पकड़ी हुई थी. अ नॉट हैड ही विद अ ब्राउन विसाज. उसका क्लोज क्रॉप्ड हेड था और उसका ब्राउन फेस था. ऑफ वुड क्राफ्ट वेल कुड ही ऑल द विसाज. वो तमाम प्रैक्टिस जानता था वुड क्राफ्ट की. अपॉन हिज आर्म ही बार गे ब्रेसर. उसने अपने आर्म पे एक एलिगेंट आर्चर्स रिस्ट गार्ड पहना हुआ था. एंड बाय हिज साइड अ सर्ड एंड अ ब्रोकलर. उसने अपनी साइड पे एक सोर्ड और एक स्मॉल शीट पकड़ी हुई थी या उसने कैरी की हुई थी. एंड ऑन दैट अदर साइड अ गे डैगर. दूसरी साइड पे उसने एक एलिगेंट डैगर कैरी किया हुआ था. harnessed well and sharp as point of spear. जो कि वेल ऑर्नामेंटेड था, यानी बहुत डेकोरेट हुआ हुआ था और बिल्कुल शार्प था जिस तरह के स्पेयर जो होता है वो शार्प होता है. क्रिस्टोफर ऑन हिज ब्रेस्ट ऑफ सिल्वर शीन. एक उसने क्रिस्टोफर का मेडल पहना हुआ था जो कि ब्राइट सिल्वर कलर का था. उस अपनी ब्रेस्ट पे यानी अपने सीने पे उसने वो लटकाया हुआ था मेडल. एंड हॉर्न ही बार द बॉर्डरेक वॉज ऑफ ग्रीन. उसने एक हॉर्न कैरी किया हुआ था और उसके शोल्डर पे ग्रीन कलर का स्ट्रैप था. अ फॉरेस्टर वॉज ही सूदली एज आई गैस. वो एक फॉरेस्टर था ट्रूली जिस तरह के वो स्पीकर कह रहा है मैं गेस करता हूँ. देर वॉज ऑल्सो अ नन अ प्रायरस. एक नन थी जो प्रायरस थी तमाम नन्स की हेड जो होती है. दैट ओवर स्माइलिंग वॉज फुल सिंपल एंड क्वाइट. वो बहुत सिंपल थी और मॉडेस्ट थी अपनी स्माइलिंग में. हर ग्रेटेस्ट ओथ वॉज बट बाय सेंट लॉय. और उसका ग्रेटेस्ट ओथ जो था वो सेंट लॉय के साथ था. एंड शी वॉज क्लब्ड मैडम एग्लेंटाइन. उसको मैडम एग्लेंटाइन कहा जाता था. फुल वेल शी सॉन्ग द सर्विस डिवाइन. वो डिवाइन सॉन्ग्स बहुत अच्छे तरीके से गाती थी. एंड ट्यून्ड इन हर नोज़ फुल सीमली. वो नाक में गाती थी पोलाइट मैनर में. एंड फ्रेंच शी स्पैक फुल फेयर एंड फीटसली. वो फ्रेंच बोलती थी बहुत अच्छे तरीके से और एलिगेंटली. आफ्टर द स्कूल ऑफ स्ट्रैटफोर्ड एट बाउ. जिस तरह से स्ट्रैटफोर्ड में बोली जाती है वैसे
for French of Paris was to her unknown. पेरिस की फ़्रेंच वो नहीं जानती थी. At Met well taught was she with all. मील टाइमिंग्स पे या कह सकते हैं खाने के वक्त बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनर्स सिखाए गए थे. She let no morsel for her lips fall. उसके मुंह से कोई भी या लिप्स से कोई भी उसका नवाला नीचे नहीं गिरता था. Knee wet her fingers in her sauce deep. ना उसकी फिंगर्स जो हैं वो सॉस में वेट होती थी. Well could she care a morsel and well keep. वो जानती थी मुंह में किस तरह नवाला रखना है and उसको किस तरह से खाना है. That no drop knee fell upon her breast. कि एक कतरा भी उसके ऊपर नहीं गिरता था. In courtesy was set full much her lest. उसके ग्रेटेस्ट प्लेयर यही था कि उसको बहुत अच्छे मैनर्स आते थे. Her over lip wiped she so clean. उसका जो ऊपर का लिप होता है बिल्कुल साफ़ होता था क्योंकि उसने वाइप कर लिया होता था. That in her cup there was no furthing seen. और उसके कप में एक टाइनी बिट भी नज़र नहीं आ रहा होता था. Of grease, किसी किस्म का ग्रीस उसके कप में नज़र नहीं आता था. When she drunken had her draught. जब वो अपना ड्रिंक ख़त्म कर लेती थी. Full seemly after her meat she wrought. She reached for her food in a very seemly manner. वो बहुत तरीके से खाना खाती थी, बहुत अच्छे manners से. And scarcely she was of great disport. And surely उसकी जो डिपोर्टमेंट थी यानी जो उसका तरीका था बहुत एक्सीलेंट था और उसकी ग्रूमिंग बहुत एक्सीलेंट थी. And full pleasant and amiable of port. And वो बहुत प्लेजेंट थी और बड़ी एमिएबल थी. And pinned her to counterfeit chair. और वो बहुत पेन उठाती थी कि वो मैनर्स को इमिटेट कर सके ऑफ कोर्ट के मैनर्स को. एंड टू बी इन एस्टलिच ऑफ मैनर ताकि वो डिग्निफाइड नज़र आए अपने बिहेवियर में और उसको इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखा जाए. एंड टू बैन होल्डन डिग्नी ऑफ रेवरेंस ताकि उसको कंसिडर किया जाए, रिस्पेक्टेबल उसको समझा जाए, उसको वर्दी समझा जाए. बट फॉर टू स्पीकन ऑफ हायर कॉन्शियस बट टू स्पीक ऑफ हर मॉरल सेंस. अगर हम उसके मॉरल सेंस की बात करें, शी वॉज सो चैरिटेबल एंड सो पिटस. वो इतनी चैरिटेबल थी यानी बहुत चैरिटी करती थी और कंपैशनेट थी. शी वुड वीप इफ़ दैट शी सॉ अ माउस. वो रोना शुरू कर देती थी अगर वो एक माउस देखती थी. कॉट इन अ ट्रैप इफ़ इट वर डेड और ब्लीड. अगर उसे एक चूहा मिलता था कि वो एक ट्रैप में फंसा हुआ है, अगर वो डेड है या वो ब्लीड हो रहा है. ऑफ स्मॉल हाउंड्स हैड शी दैट शी फेड. उसके पास छोटे डॉग्स थे जिनको वो फीड करती थी. विद रोस्टेड फ्लैश और मिल्क एंड वेस्टल ब्रेड. डॉग्स को रोस्टेड मीट या मिल्क या फाइन ब्रेड खिलाती थी. बट सूर वेप्ट शी इफ़ वन ऑफ देम वर डेड. लेकिन रोना शुरू कर देती थी अगर उनमें से कोई एक मर जाए. और इफ़ मैन स्मोट इट विद अ यर्ड स्मर्ट. और अगर कोई उनको स्टिक से मारता था तो भी रोना शुरू कर देती थी. एंड ऑल वॉज कंसाइंस एंड टेंडर हार्ट. वो बहुत इमोशनल थी और उसका दिल बहुत नर्म था. फुल सीमली हर विम्पल पिंच्ड वॉज. उसका जो विम्पल था बहुत नीटली प्लीटेड था, बड़े अच्छे मैनर में. हर नोज़ ट्रीटीज़ हर आइन ग्रे एज ग्लास. उसका नोज़ बड़ा वेल फॉर्म था और उसकी जो आइज़ थी वो ग्रे थी, बिल्कुल ग्लास की तरह. हर माउथ फुल स्मॉल एंड देयर टू सॉफ्ट एंड रेड. उसका मुंह छोटा सा था और सॉफ्ट और रेड कलर का था. बट स्केरली शी हैड अ फेयर फोरहेड. लेकिन श्योरली उसका जो फोरहेड था वो फेयर था. इट वॉज ऑलमोस्ट अ स्पैन ब्रॉड आई ट्रू. यानी वो तकरीबन 9 इंचेस ब्रॉड था. आई बिलीव यानी ये स्पीकर कह रहा है. फॉर हार्डली शी वॉज नॉट अंडर गाउन. और सर्टनली उसके पास कोई अंडर गाउन नहीं था. फुल फीटस वॉज हर क्लॉक एज आई वॉज वॉर. उसका जो क्लॉक था वो बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ था जिस तरह के मैं अवेयर हूँ. ऑफ स्मॉल कोरल अबाउट हर आर्म शी बार. उसने अपने आर्म के इर्द गिर्द एक स्मॉल कोरल होती है वो तस्बीह सी बांधी हुई थी. अ पेयर ऑफ बीड्स गाउडेड ऑल विद ग्रीन.
ये सेट ऑफ बीड्स थे जिनको एडॉन किया गया था लार्ज ग्रीन बीड्स के साथ. एंड देयर ऑन हैंज अ ब्रोच ऑफ गोल्ड फुल शीन, और वहाँ पे एक ब्राइट गोल्ड कलर का ब्रोच हैंग किया गया था. ऑफ विच देयर वाज फर्स्ट राइट क्राउंड ए. वहाँ पे ए लिखवाया गया था उस ब्रोच के ऊपर, जो कि शो करता था एंड आफ्टर एमोर विंसिट ओमनिया, इस फ्रेज़ को, जिसका मतलब है एंड आफ्टर लव कॉन्कर्स ऑल. अब यहाँ पे भी एक सटारिकल सिचुएशन है कि नन ने एक ऐसा ब्रोच पहना हुआ जिसमें लव का जिक्र किया गया है, जबकि नन का लव से कोई ताल्लुक़ नहीं. अनदर नन विद हर हैड शी हैड अनदर नन विद हर, उसके साथ एक और नन थी. दैट वाज हर चैपलन एंड प्रीस्टेस देयर, उसकी सेक्रेटरी थी और उसके अलावा 3 प्रीस्ट थे. अमॉन्ग देयर वाज अ फेयर फॉर द मेस्ट्री, एक मॉन्क था जो कि एक्सट्रीमली फाइन बंदा था. एन आउटराइडर दैट लेफ्ट वेनरी, वो आउटराइडर था. मॉन्क विद बिजनेस आउटसाइड द मोनास्ट्री, जिसका मोनास्ट्री के बाहर भी बिजनेस था और उसको शिकार करने का भी शौक़ था. अ मैनली मैन, वो एक दुनियावी आदमी था. टू बीन एन एबेटेबल, वो क्वालिफाई करता था कि वो एक एबेट बने. फुल मैनी अ डेंटी हॉर्स हैड ही इन स्टेबल, उसके पास बहुत से घोड़े थे अपने स्टेबल में. एंड व्हेन ही रोड मैन माइट हिज ब्रिडल हेयर, जब वो घोड़ा चलाता था, घर सवारी करता था, तो हर कोई उसके घोड़े की आवाज़ सुन सकता था. जिंगलिंग इन बिस्लिंग विंड एज क्लियर, जिस तरह से जिंगल की आवाज़ सुनाई देती है एक बिस्लिंग विंड में. and eke as loud as doth the chapel bell and also as loud as dull the chapel bell. chapel bell की भी बहुत ऊंची आवाज़ आती थी. there as this lord was keeper of the cell. सेल ये कह रहे हैं चर्च को. वहाँ पे मॉन्क जो है वो उसका रखमाला था, उसका कीपर था. द रूल ऑफ सेंट मॉर और ऑफ सेंट बेनेट, सेंट मॉरिस या सेंट बेनेडिक्ट के रूल में वो सब ऑर्डिनेंट था इस मोनास्ट्री का. बाय कॉज दैट इट वॉज ओल्ड एंड सम डल स्ट्रेट, because it was old and somewhat strict, that this eke monk let old things pace. यही सेम मॉन्क जो था ये कहता था कि पुराने ज़माने की चीज़ों को फॉलो नहीं करना चाहिए, यानी वो ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाला नहीं था. ये एक मॉडर्न किस्म का मॉन्क था. and healed after the new world the space and followed the broader customs of modern times, यानी मॉडर्न टाइम्स को वो फॉलो करना चाहता था. He napped not of that text a pulled hen, और वो बिल्कुल कोई ध्यान नहीं देता था बाइबल के टेक्स्ट की तरफ. That say that hunters ban not holy men, कि hunters जो हैं वो holy men नहीं हो सकते. Neither a monk when he is reachless, यानी वो monk नहीं कहलाता जो कि बागी हो जाए रूल से. Is liked till a fish that is waterless, वो ऐसी मछली की मानंद है जो कि पानी से बाहर हो. नेक्स्ट इज दिस इज़ टू सेंड अ मॉन्क आउट ऑफ हिज क्लॉस्टर. ये कहा जा सकता है कि एक मॉन्क जो है वो अपने क्लॉस्टर से बाहर है, यानी जो उसका कमरा होता है जहाँ वो स्टडी करता है. बट थिल टेक्स्ट हील्ड ही सैट वर्थ एन ऑयस्टर, लेकिन वो कंसिडर करता है सेम टेक्स्ट को कि ये एक ऑयस्टर के बराबर भी नहीं है. एंड as said his opinion was good, वो कहता है और मैं ये कहता हूँ कि उसका ओपिनियन अच्छा था. What should he study and make himself in wood, कि वो क्यों पढ़ाई करे और क्यों अपने आप को क्रेज़ी करे. Upon a book in cloister always to pour upon a book in the cloister, जिसको हमेशा सिर्फ पढ़ाई करनी होती है या कोई बुक पढ़नी होती है क्लॉस्टर में. और swinken with his hands and labor, वो क्यों अपने हाथों को थकाए किताब पढ़ के या कोई काम करके. As Austin bid, how shall the world be served? As Augustine commands, जिस तरह ऑगस्टाइन ने कमांड किया था. How shall the world be served? किस तरह से दुनिया को सर्व करे. Let Austin have his swink to him reserved. Let Augustine have his work reserved to him, कि भाई ऑगस्टाइन का ही वो काम था और वो वही कर सकता है, ये मॉन्क के बस की बात नहीं है. Therefore he was a precursor aright,
इसीलिए वो एक विगरस हॉर्समैन है कि उसको घर सवारी में दिलचस्पी है। हाउंड्स ही हैड एज स्विफ्ट एज फाउल इन फ्लाइट, उसके पास ग्रे हाउंड्स थे जो कि इतने तेज़ थे जिस तरह के एक फाउल जो है वो उड़ान लेते हुए तेज़ी से उड़ती है। ऑफ प्रिकिंग एंड ऑफ हंटिंग फॉर द हेयर, वो ट्रैकिंग करता था और खरगोश के लिए शिकार की खातिर वो इन हाउंड्स को लेकर निकलता था। वॉज ऑल हिज लस्ट फॉर नो कॉस्ट वुड ही स्पेयर, यही उसका तमाम प्लेयर था और वो किसी भी सूरत इससे पीछे नहीं हट सकता था। आई सी हिज स्लीव्स परफाइल्ड एट द हॉन्ड, मैंने उसकी स्लीव्स देखी, उसके हाथों तक थी, विद ग्रेज एंड दैट द फाइनेस्ट ऑफ अ लॉन्ड, मैंने देखा कि उसके जो स्लीव्स थे में फाइनेस्ट स्क्विरल फर लगी हुई थी जो कि पूरी लैंड में सबसे ज़्यादा फाइन फर थी। एंड फैसन हिज होड अंडर हिज चिन, और वो अपनी होड को अपनी चिन के अंडर फैसन करता था, यानी वो सो कॉल्ड मॉडर्न बनने की कोशिश करता था उस ज़माने में। जी नेक्स्ट है, ही हैड ऑफ गोल्ड रॉट अ फुल क्यूरियस पेन, उसके पास एक गोल्ड की खूबसूरत पेन थी। अ लव नॉट इन द ग्रेटर एंड देयर वाज, और उसके आखिर में एक बड़ी लार्ज लव नॉट थी। हिज हीट वॉज बेल्ट दैट शोन एज एनी ग्लास, उसका सर गंजा था जो बिल्कुल एक ग्लास की मानंद चमकता था। एंड ईक हिज फेस हैज़ ही हैड बीन ऑइंट, और उसका फेस भी चमक रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने ऑयल से रब करवाया हो। ही वॉज अ लॉट फुल फैट एंड एट गुड पॉइंट, वो बहुत प्लम्पी था, मोटा था और अच्छी कंडीशन में था, यानी उसकी हेल्थ कंडीशन अच्छी थी। हिज आइन स्टीप एंड रोलिंग इन हिज हैड, उसकी आइज़ बहुत प्रोमिनेंट थी और उसके सर में घूम रही थी। दैट स्टीम्ड एज अ फॉर्नेस ऑफ अ लीड, जो ऐसे चमक रही थी जैसे वो भट्टी में आग चमकती है। अंडर अ कॉल्ड्रन हिज बूट सपल हिज हॉर्स इन ग्रीट एस्टैट, उसके बूट सपल थे और उसके हॉर्स की बहुत ज़बरदस्त कंडीशन थी। Now certainly he was a fair prelate, certainly वो एक हैंडसम ecclesiastical dignitary था और उसका चर्च से ताल्लुक़ था, उसको अच्छी पोजीशन हासिल थी। He was not pale as four-pent ghost, वो एक tormented spirit की तरह पेल नहीं था। A fat swan loved he best of any roast, roasted meat में उसको fat swan पसंद थी। His palfrey was as brown as is a berry, उसका सैडल हॉर्स इस तरह ब्राउन था जैसे बेरी होती है। अ फरार देर वॉज अ वॉन्टन एंड अ मैरी, एक फरार था जो कि प्लेयर लविंग था और मैरी था यानी खुश मिजाज था। अ लिमिटर अ फुल सॉलम मैन, वो एक लिमिटर था यानी उसको एक टेरिटरी असाइन की गई थी, एक संजीदा इंसान था वो। इन ऑल द ऑर्डर्स फोर इज़ नोन दैट कैन, फ्रायर्स के जो चारों ऑर्डर्स होते हैं उसमें से कोई ऐसा नहीं था जो कि जानता हो। सो मैचुअल ऑफ डॉलियंस एंड फेयर लैंग्वेज, जो कि इतना सोशल हो और उसकी स्पीच इतनी एलिगेंट थी। ही हैड मैड फुल मैनी अ मैरिज, ही हैड मेड वेरी मैनी अ मैरिज, उसकी बहुत सारी शादियाँ हुई हुई थी। ऑफ यंग वुमेन एट हिज ओन कॉस्ट, यंग औरतों के साथ अपनी कॉस्ट पे। Unto his order he was a noble post, he was a noble supporter of his order, वो एक noble supporter था अपने order का। Full well beloved and familiar was he, वो बहुत beloved था और बहुत familiar था तमाम चीज़ों के साथ। With franklins over all in his country, land owners के साथ, तमाम land owners से उसकी दोस्ती थी जितने भी country में थे। And eke with worthy women of the town, and also विद वर्दी women ऑफ द टाउन, यानी वो मखसूस औरतों को जानता था जो स्पेशल और वर्दी थी। फॉर ही हैड पावर ऑफ कन्फेशन, उसके पास कन्फेशन की पावर थी यानी वो कन्फेशंस देता था। एज सेड हिमसेल्फ मोर देन अ क्यूरेट, एज ही सेड हिमसेल्फ मोर देन अ पैरिश प्रीस्ट। फॉर हिज ऑर्डर ही वॉज लाइसेंसिएट, कि उसके पास लाइसेंस हासिल था कि वो जो है वो एक पैरिश प्रीस्ट से भी ज़्यादा अपने कहलाता था और वो कन्फेशन देता था। फुल स्वीटली हर्ड ही कन्फेशन, ही हर्ड कन्फेशन वेरी स्वीटली, यानी बड़े प्यार से वो दूसरों का कन्फेशन सुनता था। एंड प्लेजेंट वॉज हिज एब्सोल्यूशन,
और उसकी एब्सोल्यूशन जो थी वो बहुत प्लेजेंट थी. ही वॉज एन ईजी मैन टू ईव पिनॉन्स, और वो बहुत लीनियंट था पिनॉन्स देने में, यानी पनिशमेंट देने में. देयर एज ही विश टू हैव अ गुड पिनॉन्स, जहाँ पे वो जानता था कि उसको एक अच्छा तोहफ़ा मिलेगा, वो वहाँ पे इतनी ईजिली पनिशमेंट नहीं देता था. फॉर अनटू टू पुअर ऑर्डर फॉर टू ईव, और जहाँ पे उसको कुछ उम्मीद होती थी कि यहाँ पे जो पुअर ऑर्डर ऑफ फिरार्स को कुछ ना कुछ मिलेगा, वो वहाँ पे पनिशमेंट नहीं देता था, बल्कि वो वहाँ पे इजीली पार्डन दे देता था. इज साइन दैट अ मैन इज़ वेल श्रीव, ये एक साइन था कि ये मैन जो है वेल कन्फेस्ड है. फॉर इफ़ ही याफ he durst make a want, for if he gave he the फरार dare to assert, वो अगर देता था तो वो जो फरार है वो assert करता था. he wished that a man was repentant, और जहाँ पे उससे उम्मीद होती थी कि उसकी वो जो पैसे वो मांग रहा है उससे वो उसको मिल जाएंगे, तो वो ये जानता था पहले से कि भाई ये आदमी जो है ये तो रिपेंटेंट है और इसकी ट्रू रिपेंटेंस है. फॉर मैनी अ मैन सो हार्ड इज़ ऑफ हिज हार्ट, बहुत सारे लोग जो हैं वो दिल के सख्त होते हैं. ही मे नॉट वीप ऑल दो हिम सूर स्मार्ट, वो रोएगा भी नहीं और ना वो जबकि वो पेनफुली सफ़र कर रहा होगा लेकिन वो रोएगा नहीं. देयरफॉर इंस्टेड ऑफ वीपिंग एंड प्रेयर्स, देयरफॉर इंस्टेड ऑफ वीपिंग रोने के बजाय और प्रेयर्स के बजाय, मैन मोट ईव सिल्वर टू द पुअर फ्रायर्स, वन में गिव सिल्वर टू द पुअर फ्रायर्स. यहाँ वो ये कह रहा है जो ट्रू रिपेंटेंट है वो रोने के बजाय या दुआएं करने के बजाय वो पुअर फ्रायर्स को सिल्वर देते हैं. अब ये सटार किया जा रहा है फ्रायर्स के ऊपर कि वो लोगों से पैसे बटोरते थे उनको कन्फेशंस देने के लिए, उनको पार्डन्स देने के लिए. हिज टिपिट वॉज ए फर्स्ट फुल ऑफ नीव्स, उसका जो हुड था वो भरा हुआ होता था नाइफ्स के साथ. एंड पेन्स फॉर टू इवन फेयर वाइफ्स को वो पेन्स देता था और वो उसकी जो हुड थी वो भरी भी होती थी उन पेन्स के साथ. एंड सर्टनली ही हैड अ म्यूरी वॉइस, उसकी खुशको नवाज थी. वेल कुड ही सिंग एंड प्लेन ऑन अ रूट, वो जानता था कि किस तरह सिंगिंग करनी है और एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट को बजाना है. ऑफ येडिंग्स ही वान आउट रिली द प्राइज़, और उसको प्राइज़ मिलता था ये बैलेट्स रिसाइट करने के लिए. His neck white was as a flower Dallas, उसकी neck lily flower की तरह white थी. There too he strong was as a champion, लेकिन वो strong था एक champion fighter की तरह. He knew the taverns well in every town, वो इन taverns को जानता था हर टाउन में, यानी उसको हर होटल और टेबल इन का पता होता था हर टाउन में. An average hostler and tapestry, उसको हर इन कीपर और बारमेड का पता होता था. बेटर दैन अ लेज़र और अ बेगेस्ट्री, बेटर दैन अ लेपर और अ बेगर मैन और वुमन. लेपर जो है वो उस इंसान को कहा जाता है जिसको कोई स्किन की डिजीज़ हो. फॉर अनटू सच अ वर्दी मैन एज ही, कि इस तरह के वर्दी मैन के लिए जिस तरह का वो है, यहाँ पे अब सटायर कर रहा है चौसर फरार के ऊपर. अकॉर्डेड नॉट एज बाय हिज फैकल्टी, ये उसके लिए सूटेबल नहीं था उसकी ऑफिशियल पोजीशन के लिए. टू हैव विद सेक लेजर्स एक्वेंटेंस, कि वो एक्वेंटेंस रखता इंसेक्ट लैपर्स के साथ. इट इज़ नॉट ऑनेस्ट इट मे नॉट एवॉन्स, ये रिस्पेक्टेबल ना होता उसके लिए और प्रॉफिटेबल भी ना होता. अगेन दिस इज़ सटायर कि उसके लिए प्रॉफिटेबल ना होता कि वो बेगर्स के साथ दोस्ती रखता. फॉर टू डील इन विद नो सच पीपल, टू डील विद एनी सच पुअर पीपल, बट ऑल विद रिच एंड सेलर्स ऑफ विटेल, वो तमाम रिच लोगों के साथ दोस्ती रखता था और विक्चुअल्स के सेलर्स के साथ भी. एंड ओवरऑल देयर एज प्रॉफिट शुड अराइज, और हर जगह वो सिर्फ वहाँ मिलता था जहाँ पे उसको लगता था कि उसका प्रॉफिट होगा, उसका प्रॉफिट राइज करेगा. कर्टियस ही वॉज एंड लॉयली ऑफ सर्विस, देयर वॉज नो मैन नोवेयर सो वर्चुअस, वो कर्टियस था और हम्बल था और कोई उस जैसा आदमी नहीं था जो इतना केपेबल होता अपने काम का. अगेन ये सटायर कर रहा है उस पर. ही वॉज द बेस्ट बैगर इन हिज हाउस, वो बेस्ट बैगर है था अपने घर में यानी अपने काम में. एंड गैफ अ सर्टन फर्म फॉर द ग्रांट, और वो अपनी सर्टन फीस लेता था अपनी ग्रांट के लिए यानी जो उसके बैगिंग राइट्स थे. नोन ऑफ हिज ब्रदरन
came there in his haunt. कोई भी जो उसके फेलो मैन जो होते थे वो वहाँ उसकी टेरिटरी में नहीं आते थे जहाँ पे वो बेगिंग करता था. For though a widow had not a shoe. For though a widow had no shoe. चाहे वो एक विडो है और उसके कोई शूज़ नहीं हैं. So pleasant was his in principio. यानी वो बिगनिंग में बड़ा प्लेजेंटली बात करता था उससे. Yet he would have a farthing or he went. यानी वो जाने से पहले उससे फर्दिंग यानी बिल्कुल जो सिक्का टाइप चीज़ होती है वो भी उससे ले लेता था उस विडो से जिसके पास कोई शूज़ नहीं होते थे. यानी वो इतना चालाक होता था कि उसने लाजमी अपने प्रॉफिट के लिए दूसरों के आगे बैक करना है. His purchase was well better than his rent. उसका जो टोटल प्रॉफिट था वो उसकी प्रॉपर इनकम से बेहतर था. And rage he could as it were right a help. And he knew how to frolic as if he were indeed a pup. वो जानता था कि किस तरह से लोगों को कन्विंस करना है और उनके आगे बेगिंग करनी है. In love days there could he much help. वो जानता था कि किस तरह से डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना है. For there he was not like a cloister. For there he was not like a cloistered monk. वो cloistered monk की तरह नहीं था. With a threadbare coop as is a poor scholar. जिसकी threadbare coop होती है और वो एक poor scholar की तरह होता है. But he was like a master or a pope. वो पोप की तरह एक्ट करता था जैसे वो मास्टर ऑफ आर्ट्स हो. Of double worsted was his semi-cope. Of wide expensive cloth was his short cloak. इसने बहुत महंगे कपड़े का शॉर्ट क्लोक पहना हुआ था. दैट राउंडेड एज अ बेल आउट ऑफ द प्रेस. इस तरह से वो राउंड थी जैसे कि एक फ्रेश बेल हो क्लॉथ प्रेस से निकली हुई. समवट ही लिप्स फॉर हिज वॉन्टननेस. वो लिप्सिंग करता था अफेक्टेशन के लिए. टू मेक हिज इंग्लिश स्वीट अपॉन हिज टंग ताकि वो इंग्लिश जो है मीठी लगे उसकी ज़बान पे. एंड इन हिज हार्पिंग व्हेन दैट ही हैड सॉन्ग. और अपनी हार्पिंग में भी और जब वो गाना गाता था. His eyes twinkled in his head aright. उसकी eyes ऐसे चमकती थी उसके सर में जैसे as do the stars in the frosty night. जिस तरह से सितारे चमकते हैं एक frosty night में. This worthy limiter was clapped Hubert. और इस फरार का नाम ह्यूबर्ट था. इसको ह्यूबर्ट कहा जाता था. जी students, I hope you have understood the lines from 1 to 269 of the prologue to the Canterbury Tales. Inshallah, I'll be covering more lines in my upcoming videos. If you have any sort of questions or queries, you can always comment below. I'll be glad to answer you all. Till then students, this is your host Samia Omar signing off from MA English Part 1 and 2 Notes. Don't forget to like my video and subscribe my channel for more informative and quality notes videos. Also press the bell icon for notifications so that you don't miss any video. Take care and Allah Hafiz.